Welcome friends. Today in this video, that is the part 2, second part of the BU previous year question of 2022. Okay, in this part, that is the part number 2, we will discuss the question number from 7 to 9. Okay, from 7 to 9. We already discussed about the question number 1 to 6 in part 1 of the BU previous year question of 2022. Okay. So, let us start with our discussion. The question number 7 part A, there is a in question number 7 there is a 3 part A, B, C. We will discuss first one, that is the 7A. What is this? Consider the causal difference equation is given, okay, where the input is also given and the y of minus 1 is given and the found the output response. Here we observe that this is y of minus 1 equal to 0, that is the initial condition is given, that is the y of minus 1 which is 0. Okay. So, let us start with solving this question. Okay. So, the solution, we know that the first of all we must know some formula, that is if y of n is there, then z transform of this will be obvious y z. Okay. Now, if y of n minus 1 is there, then the z transform will be z inverse of y z. Okay. This is without the initial condition. If there is a initial condition, then there will be a minus not plus of y of minus 1. So, this is your formula. We need to apply this formula, and also we know that what we know, that if x of n equal to a to the power n into u n, then its z transform will be how much? It will be simple 1 by 1 minus a z inverse. A is how much? Half of z inverse. So, this is your formula and its ROC will be how much? Mod z is greater than half. Okay. So, this is your basic formula for this formula we will use in this question. Okay. So, let us start. Now, our solution for these questions will be like this one. Okay. So, apply z transform in equation 1. Let this be equation 1, this be equation 2. अप्लाई द जेड ट्रांसफॉर्म इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वाई ऑफ एन क्या बन जाएगा आपका? वाई ऑफ जेड माइनस 0.8 वाई ऑफ एन माइनस 1. तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? जेड इन्वर्स. ओके, जेड इन्वर्स ऑफ वाई ऑफ जेड प्लस वाई ऑफ माइनस 1. सो दिस विल बी योर टर्म which will replace your y of n minus 1, and here it is not 0.5, it is a 0.8. Okay. So, be careful, it is a 0.8 into this one. Okay. Now, next this will be equal to 2 into x of n. So, 2 into x of z. So, this is your new equation, let it be equation number 3rd. Okay. Now, solving this one, as it is given y of minus 1 equal to 0. So, this equation will become y of minus 1, this will become your 0. So, equation 3 can be written as y of z minus of 0.5 0.8, sorry, it is not a 0.5. Okay. So, it is a 0.8 z inverse of y z. Okay, and it is 0, no problem, then this will be equal to 2 of x of z. Again, this equation can also be written as y of z, we will take it as common and it will be 1 minus 0.8 of z inverse. Okay, simple calculation. It is the signal. So, in signal we need to practice more and more, and it is same as a mathematical. Okay, signal is just simply mathematical tool. Okay, 2 into x of z. Okay, now this equation, in this equation what we are going to do, we will replace x of z, or we can write what is x of z? X of z we will replace. Okay. So, this you can also be written as 2 into x of z is 1 minus half of z inverse. Okay. So, this is your equation number 4th. Okay. Now,
again we will rewrite this one, and we can write y of z will be equal to what? It will be 2 of 2 by 1 minus 0.8 of z inverse into 1 minus half of z inverse. Okay. If you have any doubt, kindly comment on the comment section or email us. Okay. So, this is your y of z. Now, we need to take the inverse of y of z. For that, how we will proceed, that one we will see. Okay. So, basically in this equation we will use simply division rule, means simply we can convert y of z into 2 into y 1 of z into y 2 of z, simple. Okay. No problem, it is okay. Now, where what is this y 1 of z? This can be 1 by 1 minus 0.8 of z inverse. Okay. And similarly for y 2 z, y 2 z will be how much? This will be 1 minus half of z inverse. Let it be, this one is not universal, it is only assumption. Y 1 we will take this one and y 2 this one. Now, if this is your y z, means z transform, then what will be the inverse of this one? What will be inverse of this one? Y 1 n, what it will be inverse of this one? This is a simple a to the power n u n. So, a to the power n will be your 0.8 power n. So, this will be simple 0.8 power n into u of n, this will be a simple. And similarly for this one, what we can write here, y 2 of n can also be written as half power n into u of n. So, this is your simple y 1 and y 2. Now, we will take the inverse z transform. For inverse z transform, what we will do, y of n can be written as, because we seen here y of z equal to y 1 of z into y 2 of z. Okay. Now, if you are taking the inverse z transform, then if there is a product of this one, then that will be converted into this one convolution. Means if you are taking the y of n, then this can be written as y 1 of n convolution with y 2 of n, or this can also be written as summation n will be minus infinity to plus infinity. It is a 2 times of the z 1, hai na? 2 is also there. So, there will be multiple of 2 into y 1 of k into y 2 of n minus k. So, this is your simple equation. Okay. If you have any doubt, kindly comment. So, this is your equation number, let it be 5th. Okay. Let this equation be 5th. Okay. Now, we will solve this one, okay, by putting the values, given values. Okay. So, this y of n will be equal to 2 is taken as common, and summation is how much? K equal to minus infinity to plus infinity. Okay. And this will be, we will replace the values only, y 0.8 to the power k into u of k into half power n minus k into u of n minus k. This is your simple equation. Okay. Just we simply write written simplified form. Okay. Now, here we can see what we can see here. Here is a concept we will see. This u of k means k must be greater than equal to 0, otherwise the term will be 0, and this term will be when n minus k is greater than equal to 0, then this will 1 means unit step, means there will be some values, otherwise 0. So, here from here k is greater than 0 or k is less than or equal to n. Therefore, what should be the value of k? Therefore, k should be greater than equal to 0 and less than equal to n. So, this is your limit. Okay. In this limit only your product of these two, u of k and u of n minus k, will be non-zero. Okay. So, we can again rewrite this one.
what we can rewrite again, u of n, y of n equal to 2 into 2 into the common part will be taken as here. What we can write, half power n into half power minus k. Half power n means what? That will be your constant. So, that will be your out of the summation term. So, half power n, and the summation will be changed from k equal to 0 to up to how much n. Okay. And what are the element left inside? Okay. What are the elements left inside? This will be your 0.8 power k into half power minus k. Okay. So, this can also be written as what we can write, half power n minus 1. Okay. This will be converted, and the summation k equal to 0 to up to n. Okay. This will be how much? This will be your 1.6 power k. Okay. If you have any doubt, kindly contact. Okay. Kindly comment or mail to us. Okay. Is there any doubt? Okay. This is your simple form. Now we will solve this one. Okay. This summation term we are going to solve. This is simply a summation, and because there is a power, so this will be a GP term. The first term will be how much? फर्स्ट टर्म जीपी का समेशन है. फर्स्ट टर्म क्या हमारा? तो 1.6 पावर 0 दैट इज 1. ओके. नाउ व्हाट आर द कॉमन रेशियो जिसको हम लोग स्मॉल आर बोलते हैं. हाउ मच इट विल बी कॉमन रेशियो मीन्स 1 पावर 6 इंटू पावर 1. तो जस्ट वी विल मल्टीप्लाई विथ 1.6. सो 1.6 इज योर कॉमन रेशियो, एंड दिस इज ऑब्वियस, दिस इज ग्रेटर देन 0. देयरफॉर समेशन विल बी व्हाट? समेशन क्या हो जाएगा? ए टू द पावर ए मीन्स फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग ए बोलते हैं, तो ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर टर्म एन जितना भी टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. ओके. दिस इज योर फॉर्मूला. कितना टर्म होगा अगर k इक्वल टू 0 1 2 डॉट 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 एन तक गया तो कितना टर्म है ये टोटल? इट विल बी योर n प्लस 1 टर्म. चेक कीजिए ना, जैसे 0 से 1 है तो कितना टर्म है? 2 टर्म है, एक 0 एक 1 मीन्स 1 है उससे एक ज़्यादा है ना. सो दिस विल बी n प्लस 1 टर्म तक जाएगा. सो सिंपली व्हाट वी कैन राइट हियर, y ऑफ n विल बी इक्वल टू हाफ पावर n माइनस 1. ओके. इंटू समेशन क्या हो गया, इसको हम लोग ने ब्रेक किया है. ए क्या हो गया? 1.6. ए क्या हो गया? ए क्या है यहाँ पर? रुको, इजीली हम लोग करेंगे. वो ए हो गया 1 इंटू 1 माइनस 1 पे पावर 1.6 पावर कितना होगा? कितना टर्म है? n प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.6. ओके. Actually as r is greater than 0 is there, so this will be reverse. Okay. Otherwise this will be your same. Okay, no problem. So this will be how much? This will be half power n minus 1. By solving this simplified form we can write 1.6 power n plus 1 minus 1 divided by 0.6. correct? Simple calculation is this one. Okay. Now this can also be written as हाफ मीन्स 0.5, तो 0.5 पावर n. वेयर इज अ हाफ, वेयर इज माइनस 1 मीन्स 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 कैंसल हो जाएगा. सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 0.3 है ना. एंड दिस विल बी योर इनसाइड में क्या बचेगा? 1.6 पावर n इंटू 1.6 माइनस 1. नाउ सॉल्विंग और सिंप्लीफाइंग दिस वन अगेन, दिस विल बी योर मल्टीप्लाई कीजिए आप 0.5 इंटू 1.6, तो ऑब्वियस है ये क्या हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा. सो दिस विल बी योर 0.8 पावर n हो गया है ना. और क्या बचा? 1.6 है तो 1.6 डिवाइडेड बाय 0.3 हो गया. ये एक टर्म हुआ माइनस, और इधर में क्या बचेगा? जो है सेम टू सेम बाहर,
0.5 पावर n बाय 0.3 हो गया। एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, सिंप्लीफाइड करने के बाद 16/3 इंटू 0.8 पावर n, ओके, माइनस 10/3 इंटू 0.5 पावर n, वेयर n का वैल्यू क्या था, n का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है। सो दिस इज योर y of n and this is also your answer. Okay, so y of n is how much? 16/3 0.8 power n minus 10/3 0.5 power n. So this is your simple calculation and simple formula. Okay, if you have any doubt, kindly comment in the comment section. Now we will move for the 7b. What is this one? 7b, we will see 7b. 7b क्या है? कंप्यूट द इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। वी नीड टू यूजिंग द पावर सीरीज एक्सपेंशन। व्हाट इज द पावर सीरीज एक्सपेंशन? पावर सीरीज एक्सपेंशन क्या है? सिंपल सा पावर सीरीज एक्सपेंशन के बारे में जानो। सिंपली जैसे हम लोग एक्स ऑफ जेड लिखते हैं, है ना, एक्स ऑफ जेड इक्वल टू क्या है? समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू जेड पावर -1। इसको एक्सपेंड करेंगे इन द पावर ऑफ जेड। जेड पे क्या पावर 1, जेड पे पावर 2, 3, 4, तो ये हो गया पावर सीरीज। एक्सपेंशन क्या हुआ? जब इस समेशन को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डॉट 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 प्लस एक्स ऑफ -2, मान लीजिए एन का वैल्यू -2 है, यहाँ से क्या है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, -2 जेड पावर 2 प्लस एक्स पावर -1 जेड पावर 1 प्लस एक्स पावर 0 तो 1 प्लस एक्स नॉट, ओके, देन अगेन प्लस में आप चलेंगे एक्स ऑफ 1 जेड इनवर्स प्लस एक्स ऑफ 2 जेड पावर -2 प्लस डॉट डॉट डॉट। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, पावर सीरीज एक्सपेंशन। नाउ और यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे? कोफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे, तो x1 x2 x3 x0 x ऑफ -1 x ऑफ -2 का वैल्यू निकल जाएगा, और उससे अगर कोई सिंपली फॉर्म ये इक्वेशन आ रहा है तो इक्वेशन हम लोग राइट कर सकते हैं। तो ये सिंपली पावर सीरीज एक्सपेंशन है। तो चलती सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक और पॉइंट है, जैसे एक्स ऑफ जेड दिया है आपको, इट इज़ गिवन हाउ मच? जेड बाय 1 माइनस 0.5 पावर जेड इनवर्स। आपने ये देखा था ना, एक हम लोग इन्वर्स निकालने का एक मेथड था, लॉन्ग डिवीजन मेथड। वी विल यूज़ दैट वन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और यहाँ पर मॉड जेड क्या है? लेस देन 0.5। जब भी हमारा ROC अगर लेस देन किसी वैल्यू से होता है तो हमारा ROC का क्या मतलब हो जाएगा? तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? जो n होगा वो लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा, लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा, मीन्स लेफ्ट साइडेड एक्स ऑफ n होगा, है ना, लेफ्ट साइडेड एक्स ऑफ n होगा। जब लेफ्ट साइडेड एक्स ऑफ n होगा तो उस टाइम में जेड पे पावर क्या होगा? जेड पे पावर पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पर देखिए जेड पे पावर पॉजिटिव, जैसे Z2 जेड पावर 1, ये सब हमारा क्या है? लेफ्ट साइड सिग्नल का इंडिकेशन है। जीरो के छोड़ के जो भी हमारा ये है निगेटिव, मीन्स एक्स जेड पावर 2 पॉजिटिव, जेड पावर 1 पॉजिटिव, लेकिन एक्स ऑफ -1 है, मतलब क्या हो गया? n का वैल्यू कितना हो गया? -1। समझ में आया? तो ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा और जेड पर पावर पॉजिटिव पावर होगा। जब भी इस तरह का हो, लेफ्ट साइडेड सिग्नल हो या फिर जेड पर पॉजिटिव पावर निकालना है, तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे इसमें, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी 2 टाइप होगा। डिवीजन किस तरह से करते हैं, है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, ये तो न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या हो जाएगा? असेंडिंग पावर ऑफ जेड होगा, मीन्स जेड प्लस समथिंग, तो ये जो पावर होगा ये असेंडिंग पावर, मीन्स इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड का इंक्रीजिंग पावर होना, तब जो डिवाइड करेंगे इसमें तब हमारा जेड पावर पॉजिटिव पावर आते जाएगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ठीक है। ये क्या है? लॉन्ग डिवीजन, मीन्स सिंपली हम लोग क्या करते हैं? लॉन्गली इसको डिवाइड करते रहते हैं। समझ में आया? तो ये हमारा सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्या हुआ? कंसेप्ट हुआ, है ना। इसको हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो सिंपली आप डिवाइड करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिवीजन प्रोसेस।
तो सबसे पहले हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो एक्स ऑफ जेड कैन बी रिटन है जेड स्क्वायर बाय जेड माइनस 0.5, है ना। इक्वेशन 1 दिया था, ये 2 ले लीजिए, है ना। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब हम लोग इसको डिवीजन करेंगे, तो कैसे करेंगे? असेंडिंग इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड को यूज करना है, क्योंकि ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है ना। अगर राइट साइडेड सिग्नल है तो डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड को यूज करना है। तो इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड मीन्स पहले माइनस 0.5 आएगा, कहाँ, जहाँ पर जेड पावर क्या है 0 है, तब प्लस जेड है मीन्स जेड पावर 1 हो गया। इसको हम लोग किसको डिवाइड करेंगे? ऑब्वियस हम लोग वी आर डिवाइडिंग जेड स्क्वायर को हम लोग इससे डिवाइड कर रहे हैं, है ना। और ये ऐसा नहीं कि लॉन्ग डिवीजन होगा, ये कौन सा होगा? ये लॉन्ग डिवीजन हम लोग किए जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे होगा बताइए? जेड स्क्वायर है तो ऑब्वियस यहाँ पर -2 जेड स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस जेड स्क्वायर -2 जेड क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या प्लस, है ना। तो इस तरह का कंडीशन आएगा। तो ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2 जेड क्यूब। अब 2 जेड पावर क्यूब है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? -4 जेड क्यूब करना पड़ेगा फिर से। तो ये क्या हो जाएगा? 2 जेड क्यूब माइनस 4 जेड पावर 4। यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये और ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 4 जेड पावर 4। लॉन्ग डिवीजन करते रहिए, है ना। तब फिर क्या होगा? 4 पे जेड पावर 4 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आएगा -8 जेड पे पावर 4, है ना। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या होगा? 4 जेड पावर 4, ओके, -8 जेड पावर 5। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 जेड पावर 5। फिर से करेंगे डिवाइड तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर -16 जेड पावर 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 जेड पावर 5 -16 जेड पावर 5। तो ये क्या आ जाएगा? 16 जेड पावर 5। एंड दिस विल गो ऑन, सो ऑन, ये चलते रहेगा। सो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया? यहाँ से यही पता चला हमारा, यहाँ से क्या पता चल गया बताइए? यहाँ से हम लोग को पता चल गया है, क्या पता चल गया कि एक्स ऑफ जेड को अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग यूज करें तो ये आ रहा है तुम्हारा -2 जेड स्क्वायर -4 जेड क्यूब -8 जेड पावर 4 -16 जेड पावर 5 माइनस डॉट 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 तक जा रहा है ना, जैसे जैसे डिवाइड करेंगे। कोई डाउट है तो लेट दिस इक्वेशन बी योर इक्वेशन नंबर 4, है ना। इक्वेशन नंबर 4 हो गया, है ना। अब देखते हैं, फिर से रीराइट करेंगे, ठीक है। सो एक्स ऑफ जेड को हम लोग फिर से रीराइट कर रहे हैं निगेटिव पावर को ज़्यादा करके, ठीक है। मीन्स इन्फिनिटी से आ रहा है ना। -16 जेड पावर 5 हो गया, है ना। उसके बाद -8 जेड पावर 4 हो गया, -4 जेड पावर क्यूब हो गया, -2 जेड पावर 2 हो गया, है ना। यही है। एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज समेशन ओवर n इक्वल टू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, करेक्ट, एक्स ऑफ n इंटू जेड पावर -n। एक बात और, ये कहाँ तक समेशन हो रहा है? इन्फिनिटी +इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, कहाँ तक जाएगा? ये -2 तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? -2। समझ में आया? सो दिस भी इक्वेशन नंबर 5 2 तक ही है ना तुम्हारा। जेड पावर -2 पट कर देगा तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स पावर जेड पावर +2, तो जो कि ये लाएगा, जो कि लास्ट डिजिट है ना। समझ में आया ये? अब इसको कंपेयर करना है। इसको क्या करेंगे हम लोग? कंपेयर। जो हमारा इक्वेशन 1 है, कंपेयर दिस वन, कंपेयर इक्वेशन 5th विथ 1। इक्वेशन 1 क्या था देख लीजिए आप। 1 में क्या था? एक्स पावर 1 जेड पावर 1 -1 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो जब आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा देखते हैं, है ना। तो जब कंपेयर कर रहे हैं हम लोग तो ऑब्वियस है कि ये अगर n पावर क्या है, ये n पावर क्या है? -2 का वैल्यू है, n पावर -2। तो z पावर ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा हो जाएगा x ऑफ -2। एक्स ऑफ -2 का वैल्यू कितना हो जाएगा?
एक्स ऑफ -2 का वैल्यू जो आगे में दैट इज -2 है ना। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स ऑफ -3 है, तो एक्स ऑफ -3 है, एक्स ऑफ -3, तो एक्स ऑफ -3 का वैल्यू कितना आएगा, ऑब्वियस है, यहाँ पर कितना आ रहा है -4, तो -4। एक्स ऑफ -4 का वैल्यू कितना होगा -8 है ना। एक्स ऑफ -5 का वैल्यू कितना है -16 एंड सो ऑन। इस तरह से वैल्यू आपका चेंज होते रहेगा, समझ में आया। देयरफॉर इस तीनों ये जो वर्ड है सीरीज है 2, 3, 4 का, इसका कुछ रिलेशन होगा, वो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली वी कैन राइट एक्स ऑफ n कैन ऑल्सो बी रिटेन एज माइनस तो सब में है तो माइनस हो गया है ना। और उसके बाद क्या 2 पावर -1 -n, क्या ये लिख सकते हैं बाय सिंपल लॉजिक है ना, क्योंकि अगर n का वैल्यू तुम कितना ले रहे हो -2, और ये प्रोवाइडेड है किसके लिए, और दिस इज ओनली फॉर n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -2 है ना। समझ में आया, ये 6 नंबर मान लो और ये 7 नंबर इक्वेशन। एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन है, इसको अगर सिंप्लीफाइड करके फिर से लिखा जाए, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्स ऑफ n इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ पावर n+1 है ना, and u of n minus n minus 2, u of minus n minus 2. So this will be your answer for this question. Okay, अगर आप कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। u ऑफ -n-2 क्यों लिखे, क्योंकि n का वैल्यू जो है -2 से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, समझ में आया। मीन्स एक्स ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है, क्योंकि ये n इज ग्रेटर देन -2 देयरफॉर इट विल बी 0 एंड सो ऑन। समझ में आया, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, ये क्या है, एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए जेड इन्वर्स निकालना है, अगर आपको एक्स ऑफ जेड इक्वल टू क्या दिया है, जेड प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय जेड प्लस 0.5 इंटू जेड -1 वेयर आर सी इज गिवन मोर जेड इज ग्रेटर देन 1। इसका एक्स ऑफ एन निकालना है, तो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग वही क्या पावर सीरीज एक्सपेंशन, या फिर बोल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। क्योंकि ये आर क्या ग्रेटर देन 1, तो कौन सा सिग्नल होगा, राइट साइड सिग्नल होगा, राइट साइडेड सिग्नल होगा। राइट साइडेड सिग्नल होगा तो मतलब n मस्ट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, है ना। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो इस साइड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, पावर डिक्रीजिंग पावर, ये क्या होगा डिक्रीजिंग पावर से डिवाइड करना। सो इस तरह का ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स ऑफ जेड को हम लोग रीराइट करेंगे, क्या हो जाएगा ये जेड प्लस, ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ द क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर का ये नहीं है, ये मैं वैसे ही प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब नीचे में क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या होगा जेड स्क्वायर माइनस 0.5 ऑफ जेड माइनस ऑफ 0.5, करेक्ट, यही होगा। अब डिवीजन मेथड, डिवीजन करेंगे तो क्या होगा ना, पावर क्या होना चाहिए डिक्रीजिंग, तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर तब उससे लो तब उससे लो। सो जेड स्क्वायर माइनस 0.5 जेड माइनस 0.5 लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना। तो और यहाँ पर क्या होगा जेड प्लस 0.2, इसको आप डिवाइड करते जाओ कंटिन्यूस। तो फर्स्ट क्या होगा जेड इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा जेड प्लस माइनस 0.5 माइनस 0.5 ऑफ जेड इन्वर्स। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आएगा, जेड जेड तो तुम्हारा कैंसिल हो गया और ये बचा आपको 0.7 प्लस 0.5 इंटू जेड पावर -1 सॉरी पावर -1। सो दिस इज़ योर इक्वेशन। अब इसी तरह से इसी को हम लोग डिवीजन करते रहेंगे, तो ये किस तरह से आएगा जेड इन्वर्स प्लस 0.7 इंटू जेड पावर -2 है ना, प्लस डॉट 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 आएगा। तो ये आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है।
ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स ऑफ जेड कैन बी रिटेन एज, क्या लिख सकते हैं, जेड इन्वर्स आया फर्स्ट, उसके बाद 0.7 इंटू जेड पावर -2 आया प्लस, और उसी तरह से डिवाइड करते रहेगा तो 0.8 पावर जेड पावर -3 आएगा प्लस डॉट 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 चलते रहेगा। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज समेशन n इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइडेड सिग्नल है, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, एक्स ऑफ n इंटू जेड पावर -n इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो n पावर 0 पुट कर दिया तो क्या होगा, ये जेड पावर 0 मीन्स 1, जेड पावर 1 का कोफिशिएंट है क्या, कुछ नहीं है, तो 0 हो जाएगा, है ना। सो दिस इज योर, आप कंपेयर करने के बाद क्या कर सकते हैं, वेयर एक्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही है, क्योंकि कोई इसका एक्स ऑफ 0 का कोफिशिएंट है ही नहीं। 1 का क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1, जेड पावर -1 आएगा, जेड पावर -1 का ये है तो इसका कोफिशिएंट कितना, 1, तो इट विल बी 1। एक्स ऑफ -2, एक्स ऑफ +2 करेंगे तो यहाँ पर जेड पावर -2 ये हुआ तो कोफिशिएंट 0.7, एंड एक्स ऑफ 3 इक्वल टू 0.85 एंड सो ऑन। सो दिस इज योर सॉल्यूशन, मीन्स x 0 पे 0, x 1 पे 1, x 2 पे 0.7 एंड सो ऑन, इस तरह से ये सीरीज चलता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज योर इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। ओके, अगर आप कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, दैट इज द 7C। व्हाट इज दिस 7C? कंसिडर द LDC सिस्टम डिफाइंड बाय ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। स्केच पोल 0 प्लॉट आपको बनाना है, उसके बाद ROC निकालना है, ROC अगर निकल गया तो कॉजल है या नहीं, उसके बाद स्केच डायरेक्ट एंड द फॉर्म रियलाइजेशन ऑफ द सिस्टम, मीन्स कोई भी सिस्टम है उसको कैसे रियलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको पिक्टोरियल वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, सिंपल वे में, ठीक है। तो इसको हम लोग 7C का सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस 7C के लिए हम लोग पोल 0 देखेंगे, पोल कैसे निकलेगा, पोल्स के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, दैट मीन्स डिनोमिनेटर क्या है, z² प्लस z प्लस 0.5 इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से z का वैल्यू निकालो आप, क्या होगा ये पोल्स के लिए ना, हाँ, z का वैल्यू ये आएगा -12 प्लस -j/2, और देयरफॉर फॉर द पोल z का वैल्यू क्या आया, -12 प्लस j/2 कॉमा या फिर -12 -j/2, दीज आर द टू वैल्यू फॉर द पोल्स। ना जीरोस के लिए क्या है, जीरोस निकालने के लिए हम लोग को न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या है हमारा, z² प्लस z -2 इक्वल टू 0। देयरफॉर z का वैल्यू कितना आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिंपली 1, -2 आएगा, है ना। सो दिस इज योर z, दिस z इज फॉर जीरोज एंड दिस z फॉर इज द पोल्स। अब देखिए जीरोज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपली एक ये सर्कल से, और पोल्स को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इसको अब हम लोग डायग्राम से बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर z इक्वल टू 1, -2 है ना, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, देखते हैं पोल 0 प्लॉट में। तो सिंपली हम लोग पहले सर्कल एक बनाएंगे, है ना, उससे पहले एक्सिस बना लेते हैं एक, मान लीजिए पहले हम लोग यूनिट सर्कल बनाते हैं, लेट इट बी यूनिट सर्कल। क्यों बनाते हैं वो आप बाद में देखिएगा, है ना, आइडिया के लिए। ये हो गया, आपको क्या हो जाएगा, जेड ये क्या है, जेड प्लेन, कौन सा प्लेन है, ये जेड प्लेन। जेड प्लेन में क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, और वाई एक्सिस क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, दो चीज़ हो गया। अब इसको मार्किंग करेंगे, ठीक है। मार्किंग का मतलब ये जो सर्कल है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है mod z इक्वल टू 1, और यूनिट सर्कल है, मान लीजिए इसको मैंने ड्रॉ किया, लेट इट बी, तब पता चल इजी हो जाएगा हम लोग को कंपेयर करने में। 1 यहाँ है तो 2 कहाँ होगा, 3 कहाँ होगा, एंड सो ऑन। सो पहले हम लोग किसको प्लॉट करेंगे, पहले पोल्स को करते हैं। पोल्स कहाँ है, पहले 0 कर देते हैं, 0 कहाँ है, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू +1 है, मीन्स रियल 1 है ना, तो z इक्वल टू 1 कहाँ आएगा, ये 0 हो गया, गोल से रिप्रेजेंट किया। एंड -2 कहाँ आएगा, 0, तो माइनस ये हो गया आपको -1, ये हो गया
-2, सो दिस विल बी योर -2। समझ में? तो इस तरह से आप जीरो को रिप्रेजेंट किया। अब हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पोल्स को। पोल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय क्रॉस। तो पोल का वैल्यू क्या है? -12 प्लस j/2, प्लस j/2 मीन्स वाई एक्सिस जाएगा, है ना। तो -12 है तो -12 कहाँ आएगा? ऑब्वियस यहाँ पर होगा। ये यहाँ तक क्या 1 है, यहाँ से यहाँ 1 है ना। तो ये -12 प्लस j/2, प्लस j/2 मीन्स हाफ ऊपर, तो हाफ तो यहाँ आएगा, तो ये कॉमन पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो एक पोल यहाँ होगा और दूसरा पोल यहाँ पर होगा, करेक्ट है ना। -12 - j/2, समझ में आया? तो ये आपका दो पोल्स हो गए, समझ में। तो अब इसको पोल को हम लोग मार्किंग किए क्रॉस से और जीरो को मार्किंग किए जीरो से, समझ में आया? तो ये आप लिख लेना, है ना। ये क्या है? जीरोज़ हैं, जीरोज़। ये भी क्या है? जीरो। और ये जो है, ये जो मार्क है ये हो गया पोल, और इधर भी पोल, है ना। इस फिगर में समझ में आया? अब इसमें देखने वाली बात क्या है? जो भी हमारा पोल्स है वो इनसाइड क्या है? सर्कल, है ना। पोल जो है इनसाइड द यूनिट सर्कल, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था? क्वेश्चन में है फॉर द स्टेबल LTI सिस्टम, मीन्स दिया हुआ कि सिस्टम आपका क्या है? स्टेबल है। अगर सिस्टम स्टेबल होता है तो इसका ROC क्या होता है? ROC क्या है? ROC जो है मस्ट इंक्लूड यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल को भी ये इसको क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यूनिट सर्कल छोड़ के चला गया, इस तरह से नहीं। यूनिट सर्कल को इंक्लूड करना पड़ेगा। मीन्स अगर इनसाइड सर्कल है तो ROC क्या होगा? इस तरह से क्रॉस करना चाहिए यूनिट सर्कल को, है ना। अगर बाहर है तो इस तरह से क्रॉस करना चाहिए यूनिट सर्कल को, है ना। तो ये ROC का फंडा हो गया, है ना। और दूसरा फंडा क्या है ROC का? ROC कैन नॉट कंटेन पोल। ROC के अंदर कोई भी पोल नहीं होना चाहिए। कंटेन एनी पोल। अब ROC के अंदर में पोल भी नहीं होना चाहिए। ROC के अंदर में पोल भी नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हो गया? एज ROC कैन नॉट contain any pole. ROC cannot contain any pole. Therefore ROC में भी क्या हो सकते हैं? दो ही ऑप्शन बचेगा। क्या? या तो mod z इज ग्रेटर देन 1/√2 और mod z इज लेस देन 1/√2। लेस होगा तो ये लेफ्ट साइडेड हो जाएगा, ग्रेटर है तो राइट साइडेड सिग्नल होगा, है ना। समझ में आया? mod z इज ग्रेटर देन 1/√2। 1/√2 क्यों होगा? 1/2? क्योंकि इसका रेडियस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस 1/√2 का मतलब क्या होगा? √1² प्लस हाफ स्क्वायर प्लस j/2 का स्क्वायर, है ना। दिस विल बी √1/2, क्योंकि हमारा पोल्स क्या है? हाफ प्लस माइनस j/2, है ना। इसका रूट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रेडियस हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए एक होगा लेस देन और एक होगा ग्रेटर देन, है ना। अब देखिए एक अगर ये होगा मीन्स mod z इज लेस देन हाफ 1/√2। मान लीजिए 1/√2 यहाँ पर आया था, है ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सर्कल है ये वाला हो गया आपको सर्कल 1/√2 का, है ना। इससे कम होना चाहिए। तो इनसाइड द सर्कल हो गया हमारा ROC, है ना। तो अगर मान लीजिए 1/√2 हो गया तो ये भी क्या होगा? 1/√2। ये पॉइंट क्या होगा? -1/√2। तो ये क्या इंक्लूड कर रहा है क्या? यूनिट सर्कल को। ये यूनिट सर्कल को इंक्लूड नहीं करेगा। इट विल नॉट इंक्लूड यूनिट सर्कल, सो नॉट स्टेबल सिस्टम। तो स्टेबल सिस्टम नहीं होगा। देयरफॉर फॉर स्टेबिलिटी mod z मस्ट बी ग्रेटर देन 1/√2। अब देखते हैं ये जो सर्कल मान लीजिए 1/√2 का रेडियस लेके घुमा हुआ।
अगर बोल रहा है इससे क्या, मॉड जेड इज ग्रेटर देन √2, मॉड जेड इज ग्रेटर देन √2 मतलब 1/√2 से ज़्यादा होगा ROC, तो ये इस तरह से होगा, ये मॉड जेड से ज़्यादा होगा, है ना। तो ऑब्वियस है यहाँ पर जो अगर है 1 का जो रेडियस लेके जो सर्कल है उसको ये इंक्लूड कर रहा है, देयरफॉर दैट विल बी योर स्टेबल। सो देयरफॉर ROC must be mod z is greater than 1/√2. If this is the case, then our system will be causal. So therefore system will be causal. समझ में आया, क्योंकि causal का मतलब क्या हो गया, ROC is outside the circle mod z इक्वल टू 1/√2, है ना। जो भी पोल का जो सर्कल है उससे बाहर होना चाहिए, है ना। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर कॉजल। तो कॉजल सिस्टम हो जाएगा ROC z इक्वल टू 1/√2 होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट, दैट इज पोल जीरो प्लॉट एंड द ROC। पोल जीरो प्लॉट होगा कैसा, तो ये वाला डायग्राम देखिए, ये थोड़ा क्लियर है ना। ये हो गया रियल पार्ट, है ना, और ये इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड प्लेन, है ना। समझ में आया। यहाँ पे देखिए जीरो को पोल हुआ, ये सर्कल हो गया, है ना, ये यूनिट सर्कल हो गया, ये क्या है, यूनिट सर्कल हो गया, है ना। समझ में आया, तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए अब रियलाइजेशन करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, रियलाइजेशन ऑफ फिल्टर। अब देखिए कोई भी डिजिटल फिल्टर है ना, कोई भी फिल्टर है उसको हम लोग को रियलाइज करना पड़ता है इन वेराइटी ऑफ वेज। देयर इज अ टू वे ऑफ टाइप ऑफ रियलाइजेशन, रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव। रिकर्सिव रियलाइजेशन में क्या होता है, जो आउटपुट है y(n), वो जो फंक्शन होगा पास्ट आउटपुट, पास्ट एंड प्रेजेंट इनपुट, पास्ट का भी हो सकता है, पास्ट आउटपुट का होगा फंक्शन, मीन्स y(n) इक्वल टू y(n-1) मीन्स पास्ट आउटपुट, प्लस पास्ट एंड प्रेजेंट इनपुट मीन्स x(n-1) एंड प्लस x(n), ये सब हो जाएगा तो समझ जाइएगा वो रिकर्सिव रियलाइजेशन होगा। और इसको यूज कहाँ करते हैं, ये यूज होता है इन्फिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स डिजिटल फिल्टर के लिए। समझ में, ये सब बेसिक है, ये सिंपली आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये DSP का पार्ट होगा मेनली। ओके, और नॉन रिकर्सिव में क्या होगा, जिसका y(n) इज द ओनली पास्ट एंड द प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा, मीन्स y(n) विल बी फंक्शन ऑफ x(n-1) x(n), बस इसी का फंक्शन होगा। तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रिकर्सिव। रिकर्सिव में क्या होगा, ये आउटपुट का ही फंक्शन होगा, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ पास्ट आउटपुट। समझ में आया। अगर इस तरह का नॉन रिकर्सिव होगा, नॉन रिकर्सिव, तो इसको फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स FIR डिजिटल फिल्टर में यूज करेंगे, ठीक है। नाउ IIR जो भी रिकर्सिव रियलाइजेशन बोलते हैं उसके टाइप होते हैं, कितने फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं, टाइप 1 रियलाइजेशन फॉर्म में, टाइप 2 रियलाइजेशन फॉर्म में, ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन, कैस्केडेड, या फिर पैरेलल, या फिर लेटिस स्ट्रक्चर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 1 और 2। बेसिकली ये सब पार्ट ऑफ डी सिग्नल एंड सिस्टम का नहीं है रियलाइजेशन, लेकिन दे दिया तो हम आपको भी ये क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, है ना, ताकि कोई भी आपको डाउट ना रहे। लेकिन ये सब नहीं पूछा जाता है जनरली, है ना, ठीक है। न्यू पैटर्न में ये सब नहीं है ना, ये DSP का पार्ट है जो कि आपको, हमको लगता है 6 सेम में आप पढ़ोगे शायद। ओके, सो डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन 1 एंड डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन 2, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन 1 क्या है और 2 क्या है उसको देखेंगे, है ना। इसमें आपको ध्यान में रखना है जो डिले फंक्शन होता है, क्या होता है, डिले फंक्शन। डिले फंक्शन हो गया z⁻⁻1 को हम लोग डिले बोलते हैं, मीन्स अगर मान लीजिए n-1 है, x मान लीजिए x(n-1), तो इसको हम लोग सिंपली z⁻⁻1 x(z) लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से डिले का काम कर रहा है, ये देख रहे हैं n-1 मीन्स डिले हुआ। तो डिले का जो काम है z⁻⁻1 से रिप्रेजेंट करेंगे डिले को। तो डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन 1 में क्या हो गया, यहाँ पर इंडिविजुअल डिले यूज करेंगे, इनपुट के लिए अलग डिले और आउटपुट के लिए अलग डिले। लेकिन डायरेक्ट फॉर्म 2 में रियलाइजेशन क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन में क्या होगा, देखिए एक्चुअली रिकर्सिव में 2-3 चीज़ रहेगा आपको, y(n-1), x(n-1), x(n), तीनों रहेगा, है ना।
तो और डायरेक्ट फ्रॉम रियलाइजेशन 2 में क्या होगा, इसमें जो आपका ये है डिले, ये जो है ना कॉमन रहेगा, इनपुट में भी वही डिले रहेगा और आउटपुट में भी वही डिले यूज करेंगे, है ना। तो मतलब इसमें जो डिले है वो कम यूज होंगे, लेकिन इसमें ये डायरेक्ट 1 में ज़्यादा यूज होंगे। सो देखते हैं आपको डायरेक्ट रियलाइजेशन। सो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन दिया, हम लोग सीधा सॉल्व करेंगे। जो प्रोसेस है वो आप देखिए, रीड कीजिए, है ना, और उसी तरह से रिपीट करने की कोशिश करें। जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है हमारा एच ऑफ जेड, उसको हम लोग डिफरेंस इक्वेशन में फॉर्म करेंगे। तो पहले दिया हुआ क्या है, 1 प्लस क्या हमारा जेड ट्रांसफॉर्म देखते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 0.5, है ना। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन, इसको रीराइट करेंगे, है ना। क्या हो जाएगा ये 1 प्लस जेड इनवर्स माइनस 2 जेड पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड पावर माइनस 1 प्लस 0.5 इंटू जेड पावर माइनस 2, है ना। और एक्स एच है ट्रांसफर फंक्शन, तो वाई जेड बाय एक्स ऑफ जेड लिखेंगे, है ना। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, समझ में आया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड इन्वर्स माइनस 2 जेड इन्वर्स। आप इसको छोड़ भी सकते हो, है ना, क्योंकि ये सब अब नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये डीएसपी का पार्ट है ना। इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपको 0.5 इंटू जेड पावर माइनस 2 हो गया। अब इसका क्या करना है हम लोग को, इसका हम लोग को इन्वर्स लेना है, जेड इन्वर्स लेना है, इसका हमको जेड इन्वर्स लेना है। लेट इट वी विल टेक द जेड इन्वर्स। तो सिंपली ये वाला टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 1 है तो एक्स ऑफ एन हो जाएगा, सिंपल जेड ट्रांसफॉर्म। एक्स ऑफ एन माइनस 1 होगा तो जेड पावर माइनस 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 जेड पावर माइनस 2 है तो एक्स ऑफ एन माइनस 2 करेंगे, है ना। सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर सेम है तो वाई एन हो जाएगा, यहाँ पर एक माइनस है तो प्लस वाई ऑफ एन माइनस 1 हो जाएगा, है ना, प्लस 0.5 इंटू जेड पावर माइनस 2 है तो वाई ऑफ एन माइनस 2 हो जाएगा। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, सिंपल है ना। अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, वाई ऑफ एन के टर्म में लिखेंगे। सिंपली वाई ऑफ एन को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या बोला गया है, जो डायरेक्ट आउटपुट जो होगा रिकर्सिव में, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ ये तीनों का आउटपुट फंक्शन होगा। देयरफॉर वाई एन इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ वाई ऑफ एन माइनस 1 माइनस ऑफ 0.5 ऑफ वाई ऑफ एन माइनस 2, है ना, और क्या होगा प्लस एक्स ऑफ एन। सिंपली हम लोग रीराइट कर रहे हैं ना, प्लस एक्स ऑफ एन माइनस 1, उसके बाद क्या माइनस 2 एक्स ऑफ एन माइनस 2। लेट दिस भी इक्वेशन नंबर 4, है ना। तो कहीं भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, है ना। अब देखिए ये हो गया आपको डिफरेंस इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोग खेल खेलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, फॉर्म 1 मीन्स रियलाइजेशन, डायरेक्ट रियलाइजेशन फॉर्म 1। फॉर्म 1 में क्या करना है हम लोग को, लेट करना है। लेट क्या एज्यूम करेंगे, जितना भी हम लोग का इनपुट है उसको हम लोग को एजम्पशन ले लेंगे। लेट दिस बी योर ओमेगा एन, लेट इट बी, इसमें एजम्पशन लेना पड़ता है ड्रॉ करने के लिए। ओमेगा एन इक्वल टू क्या ले लेंगे, एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ एन माइनस 1 माइनस 2 एक्स ऑफ एन माइनस 2, है ना। कोई डाउट है। देन अगर ये हो गया, देन हम लोग वाई ऑफ एन को क्या लिख सकते हैं, वाई ऑफ एन ई कैन बी रिटन एज माइनस वाई ऑफ एन माइनस 1 और माइनस 0.5 वाई ऑफ एन माइनस 2 और प्लस डब्ल्यू ऑफ एन। दिस भी इक्वेशन नंबर 6, है ना। नाउ अब इसको हम लोग रियलाइज करेंगे, इसको हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना है, जहाँ जहाँ पर -1 है ये डिले का काम करेगा। -1 मीन्स 1 डिले, 2 मीन्स 2 डिले, है ना। तो इसको हम लोग अब डायग्राम में बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे पहले हमारा इनपुट है, यहाँ से लेट इट बी एक्स ऑफ एन, क्या है हमारा इनपुट, है ना। अगर हम लोग एक्स ऑफ एन को अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं एडिशन में प्लस, तो इससे जो आउटपुट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ एन। तो डब्ल्यू ऑफ एन को पहले बनाना है। तो क्या है ये, एक्स ऑफ एन है और इसमें समेशन है एक्स ऑफ एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 इसमें और जोड़ना पड़ेगा। एक्स ऑफ एन तो यहाँ तक आया और इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा हम लोग को, एक्स ऑफ एन इंटू 1। तो एक्स ऑफ एन आया
तो x ऑफ n में हम लोग जोड़ेंगे एक और चीज़ को जोड़ेंगे, है ना। क्या जोड़ना है हम लोग को, x ऑफ n माइनस 1। तो एक जो है x ऑफ n में हम लोग एक डिले को ऐड कर रहे हैं z इनवर्स, है ना, और इसको हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। मीन्स जब इस तरह से अगर कनेक्ट करके यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं विथ मल्टीपल ऑफ 1, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको x ऑफ n माइनस 1। अब फिर से एक और डिले इसमें कनेक्ट कीजिए, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई, तो ये जो पॉइंट आया ये हमारा क्या हो जाएगा, n माइनस 1 में एक और डिले, तो n माइनस 2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर x ऑफ n माइनस 1 प्लस x ऑफ n माइनस 2 यहाँ पर आएगा और प्लस 1 होगा तो WN आ जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारा WN आया। अब y ऑफ n के लिए हम लोग को बॉक्स बनाना है, तो y ऑफ n के लिए बॉक्स बनाना है। तो y ऑफ n के लिए क्या है, एक सिंबल हो गया y ऑफ n का, क्या WN तो है ही, प्लस इनपुट आउटपुट को भी हम लोग को इसमें ऐड करना पड़ेगा। लेट इट बी y ऑफ n है, मान लीजिए इस तरह से, तो y ऑफ n है, y ऑफ n में क्या है, एक डिले लगाना है, तो ये हो गया आपको z माइनस 1। तो ये जो पॉइंट आएगा ये क्या हो जाएगा हमारा y ऑफ n माइनस 1, क्योंकि ये क्या yn, इसमें एक डिले कर दिया तो y ऑफ n माइनस 1 हो गया। तो ये हो गया y ऑफ n माइनस 1, लेकिन y ऑफ n माइनस 1 के सामने क्या है, माइनस 1, तो यहाँ पर कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस 1। अब इस पर फिर से एक और डिले ऐड कर दीजिए z इनवर्स का, तो ये क्या हो जाएगा y ऑफ n माइनस 2। जब इस तरह से आएगा तो इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कितना है कोफिशिएंट, माइनस 0.5, तो ये माइनस 0.5। सो दिस इज योर डायग्राम फॉर द डायरेक्ट फॉर्म 1 रियलाइजेशन। समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग वी नीड टू ड्रॉ द डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन ऑफ द सिस्टम। तो हम लोग ने एक ही रियलाइजेशन का सिस्टम बनाया है, ठीक है। अब फॉर्म 2 में क्या होता है, तो ये इजी है, ज़्यादा वो नहीं है, टफ नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम लोग करना, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन 2, डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन 2 हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, कोई एक फॉर्म डिस्कस कर दिए y ऑफ फॉर्म 1, तो इसी को रहना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन 2 का डायग्राम हम बना सकते हैं, लेकिन छोड़िए फॉर्म 2 को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है। तो फॉर्म 1 बना दीजिएगा, काफ़ी है, ठीक है, वो भी आप नहीं बना पाओगे, है ना, ये सब है ही नहीं टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है 8 ऑफ a, 7 कंप्लीट हो गया। 8a में क्या है, अगर मान लीजिए ये हमको प्रूव करना है ना, मीन्स एनर्जी ऑफ x ऑफ n, ये क्या एनर्जी है, एनर्जी किसका, x ऑफ n का, ये क्या होता है, सम ऑफ एनर्जी ऑफ इवन, सम ऑफ एनर्जी ऑफ ऑड, दैट वी नीड टू प्रूव। ये तो एनर्जी का ही है ना सिंबल, समझ में आया। तो पहले इवन एंड ऑड को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इवन सिग्नल क्या होता है, सिंपल है, x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस 1, है ना, समझ में आया। और ऑड का ये हो गया सिंपल, है ना, और ओरिजिनल सिग्नल ये होता है हमारा। अब x ऑफ n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ x ऑफ n, e ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल है ये फॉर्मूला। अब इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे इवन प्लस ऑड से, तो इवन प्लस ऑड का सम का स्क्वायर करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा सिंपल, है ना। उसके बाद क्या आता है, ऑर्थोगोनैलिटी, ये आप इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या हो गया, अब देखिए ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इवन इंटू ऑड किया गया। इवन मीन्स 2 इंटू ऑड मीन्स 3, तो क्या होगा 6, 6 क्या है, ऑड है या इवन, दिस इज ऑड। 2 इंटू 7, ये क्या है 14, ये क्या है इवन, सॉरी 2 इंटू 3 6 है, ये भी क्या है इवन, मीन्स ये क्या होगा आपको, यहाँ पर करेक्शन है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है ना, क्या करेक्शन है यहाँ पर, क्या है, अगर इस तरह का समेशन है इवन इंटू ऑड,
ठीक है। तो देयर प्रोडक्ट इवन इंटू ऑड इज ऑड ही होगा। कैसे, देखिए इवन मान लीजिए आपको एक्स स्क्वायर है ना, और ऑड मान लीजिए आपका एक्स क्यूब है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इवन इंटू ऑड क्या होगा, एक्स पावर 5 हो जाएगा। ये क्या है, ऑड। समझे, ये फंक्शन की बात कर रहा है, ये नंबर्स की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर फंक्शन है। समझ में आया। तो ऑड हो गया, और ऑड का समेशन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, वो जीरो होता है ना। देयरफॉर सिंपली वी कैन राइट दिस वन, एंड सो दिस इज योर प्रूफ। ओके, so energy of signal is equal to sum of the energy of even part and the odd part. So this is a simple derivation. Okay, next 8b, 8b देखते हैं क्या है, 8b क्या है, 8b, 8b कहाँ गया यार, 8b, यस 8b क्या, कॉन्वोल्यूशन निकालना है। ये दो नंबर दिया है, इसका कॉन्वोल्यूशन। तो x ऑफ n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से बताइए। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, क्योंकि इसके पहले जीरो है तो इग्नोर कर दीजिए, 2 - 3 1 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जीरो को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, है ना। सो और यहाँ पर क्या है, जीरो है। और h ऑफ n को क्या लिख सकते हैं, दिस h ऑफ n कैन ऑल्सो बी रिटन एज समेशन, कहाँ से, 1, 2 2 2, है ना। तो 1 पे तो नहीं है, 2 पे जीरो है ना। और इसको हम लोग सिंपली टेबल फॉर्म में राइट करेंगे। तो सिंपली हम लोग टेबल बनाएंगे, है ना। इधर मान लीजिए आप x ऑफ n और इधर मान लीजिए h ऑफ n, है ना। x ऑफ n क्या क्या है, 2 - 3 एंड 1। अगर आपको इस पे डाउट है तो आप कॉन्वोल्यूशन इन डिस्क्रीट टाइम का लेक्चर देख सकते हैं ना। इधर में क्या 1 2 एंड 2। अब क्या करते हैं हम लोग, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 2 - 3 1, 2 × 2 4, 2 × 6, 2 × 2 4 - 6 एंड 2, ये हो गया। अब हम लोग इसको डायगोनली ऐड करते हैं, है ना, ऐड करते हैं। और हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि इसका जीरो कहाँ पर लेंगे, जहाँ पर दोनों का ओरिजिन मीट करता है। जैसे यहाँ पर 2 है ना, ले लिए ना, यहाँ पर जैसे ये है ना, तो ये वाला पार्ट हो गया ये, और इधर में कहाँ पर, ये भी 2 पे है। तो देखिए ये वाला पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर आ रहा है। मीन्स ये जो कॉलम का जो ये जो डायगोनल ये है एडिशन, ये दोनों का ये आपका ओरिजिन होगा। देयरफॉर एक्स ऑफ एन बोलते हैं, ये क्या कन्वोल्यूशन है ना, वाई ऑफ एन, वाई ऑफ एन विल बी क्या क्या हो जाएगा, नंबर 2, और इस दोनों को सम करेंगे 4 - 3 तो 1, क्योंकि ये टारगेट बोले थे, ये ओरिजिन का होगा तो ये ओरिजिन हो गया। और इसमें ऐड करेंगे तो 5 - 6 तो -1, और 6 - 2 तो -4 2। सो दिस विल बी योर y ऑफ n। 2, 1, -1, 4, 2। सो दिस इज योर आंसर, है ना। सो दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 8c देखते हैं। 8c क्या है, दो सिग्नल दिया हुआ है ना, दो सिग्नल, एक सिग्नल दिया है, इसमें बोल रहा है कि x ऑफ अल्फा टी क्या होगा, है ना। स्केच द सिग्नल मीन्स x ऑफ अल्फा टी का वैल्यू क्या होगा, इसका डायग्राम बनाना है। जब अल्फ़ा क्या है, हाफ है, और अल्फ़ा इज 2 है। तो अल्फ़ा इज 2 मीन्स ग्रेटर देन 1 है, अल्फ़ा इज हाफ है, लेस देन 1। जब लेस देन 1 है तो हम लोग क्या करते हैं, जब x ऑफ अल्फ़ा टी निकालते हैं तो अल्फ़ा से टाइम एक्सिस को डिवाइड कर देते हैं। मीन्स -2/अल्फ़ा हो जाएगा, 0/अल्फ़ा हो जाएगा, और 2/अल्फ़ा हो जाएगा। सिंपली यही होता है। अल्फ़ा क्या है, हाफ है, मान लीजिए ये क्या है, हाफ देंगे तो ये क्या होगा, -4, हाफ है तो 0, हाफ है तो 4। ये हो गया अल्फ़ा इक्वल टू हाफ का टाइम एक्सिस। और इसके लिए क्या हो जाएगा, -2/2, 0/2, 2/2 means this can be -1 0 and 1. so this is your this axis. so इसका सिंपली ग्राफ क्या होगा, सेम ग्राफ बनाएंगे, है ना। ये टाइम एक्सिस हो गया। अब देखिए कहाँ से कहाँ है, ये अल्फ़ा इक्वल टू 2, तो x ऑफ t/2 का ग्राफ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ हो गया, -4 0 एंड उसके +4। तो +4 तक क्या है, सेम कांस्टेंट वेव फॉर्म, है ना। और ये क्या हो जाएगा, इधर में स्लोपिंग है, स्लोपिंग हो गया, तो ये क्या हो गया, इस तरह का ग्राफ हो गया। सो दिस इज योर x ऑफ t/2, है ना। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ये टाइम हो गया x ऑफ 2t। x ऑफ 2t का ग्राफ कहाँ से कहाँ होगा, -1 से 0, 0 से 1, तो -1 0 एंड +1।
इसका क्या है, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट हो गया और यहाँ से यहाँ डायगोनल हो जाएगा और ये 1. सो दिस इज योर 2 ग्राफ. ओके, दिस वन एंड योर दिस वन. दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चंस. ओके, और अगर आपको ये कैसे बना है तो ये आप देख भी सकते हो प्रीवियस लेक्चर्स में जो बेसिक वन. सो दिस इज 8 नंबर 8C. नाउ वी विल मूव फॉर द 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9. सो basically in question number 9 we can see this is totally a short notes we need to write in any for. What is the power and energy signal, you can refer the because this one is theory question. So I am suggesting you to follow the previous lectures and write down that answer. Okay, power and energy signal क्या देख सकते हो आप, पढ़ा दिया. रिलेशन बिटवीन लेप्लास एंड जेड ट्रांसफॉर्म में क्या रिलेशन है, इजीली यू कैन राइट फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर. इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है, यू कैन राइट इन टर्म ऑफ लेप्लास एंड जेड ट्रांसफॉर्म. देयर इज अ 2 टाइप्स. ओके, लेप्लास एंड जेड ट्रांसफॉर्म. प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, इट कैन बी इजीली रिटन. ओके, जीरो ऑर्डर सर्किट, इट कैन बी इजीली रिटन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स. रिलेशन बिटवीन द लेप्लास एंड द जेड, लेप्लास के बारे में पता है, लेप्लास एंड जेड. तो जेड ट्रांसफॉर्म जो यूज होता है डिस्क्रीट के लिए, जबकि ये किसके लिए होता है, कंटिन्यूस टाइम के लिए. ये सब बेसिक फंडा है, तो ये सब अब जाके प्रीवियस लेक्चर में जाके सॉल्व कर सकते हो. देयरफॉर दिस कंप्लीट योर लेक्चर नंबर lecture note. This complete your part 2 of the BU previous year question of 2022. Okay, so this is overall the questions of the BU 2022 क्वेश्चन पेपर इज टफ. ये टफ क्वेश्चन था, है ना. और ये सम क्वेश्चंस आर आउट ऑफ द सिलेबस ऑफ द सिग्नल एंड सिस्टम. For example, direct realization, that will be the part of your DSP, digital signal processing. So you can avoid that one. Okay, there are some questions that is given to leave that question. Okay, we need not to attempt all questions. Okay, so this complete your BU previous year 2022. Okay, thank you.